this special edition of the News Hour. I'm Padmaja Joshi. Today, Nitish Kumar became Chief Minister of Bihar for the 9th time. And in doing so, he became the very latest person to have parted ways with INDIA. But what was interesting was that when leaving the alliance, there was barely any bitter word uttered by either Nitish Kumar or the JDU for their majority alliance partner in Bihar, the RJD. Instead, Nitish Kumar and his party trained their guns at the Congress, speaking of how the Congress party seemed unable to do any real work for the Mahagathbandhan, remained non-committal to the issue of seat sharing, and even accused the Congress of conspiring against Nitish Kumar. कितना काम हम कर रहे थे, अब उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कॉकस था, उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए हैं। Mind you, this has come exactly 24 hours before Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyaya Yatra is to enter Bihar. Incidentally, Mamata Banerjee also snapped ties with INDIA and declared that she would fight the Lok Sabha elections alone in Bengal just one day before the Nyaya Yatra was to enter her state. Today, the DMK and the Congress held seat-sharing talks for Tamil Nadu and expressed much enthusiasm, but even in Tamil Nadu, no real formula has been made public yet. The Congress may fast be losing friends and alienating allies, but the Mohabbat ki dukaan remains intact, and the Congress and RJD have predicted that it is Nitish who will face the wrath of the people for his decision and will soon be a part of history, be completely obliterated. इतने मोहब्बत से आपने, मैंने कहा भी नहीं, और आपने मोहब्बत की दुकान खोल दी, और फ्री में दिल खोलकर, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए, और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। It is nothing new. He has changed his political colors so frequently. He will give good competition to chameleons who keep changing their color. This whole thing was a drama. The Sutradhar was the Prime Minister. The main actor was Mr. Nitish Kumar. This will have no impact on the India group. खैर जा रहे हैं, जाने दो, हम लड़ते रहे, पहले आप और हम मिलकर लड़ते रहे, हम लड़ेंगे, तो उसकी फिक्र आप छोड़ दो, हम बात करेंगे और हेड़ी दो। अरे उसीलिए हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। What has happened in Bihar is not about the state alone. Make no mistake, this is the BJP trying to march towards its 400 par target, but more importantly, trying to ensure that the INDIA grouping doesn't manage to find its feet. Today, they all united, the BJP leaders united across the board, predicting the demise of the opposition alliance. But the question now is, who is responsible? Is the Congress single-handedly behind the demolition of INDIA, or is the BJP parking the blame unfairly at the grand old party's door for its own wrecking ball tactics? When India Alliance was formed, we told everyone that this is a
short-lived alliance. This alliance will not live long because of ideological contradiction. They are only target to us Prime Minister Narendra Modi. You cannot form an alliance only to oppose an individual. देखिए, जो अपने गठबंधन दलों के साथ न्याय नहीं कर पाए, जिनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत ज्यादा नजर आई, तो बिखरावट तो होनी ही थी। जो मान सम्मान नहीं दे पाए, जो निर्णय नहीं कर पाए, वो न्याय कहां से देंगे? जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस, ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। इसलिए इंडिया अलायंस का जो हुआ है वो आप सबके सामने है। All right, on this very politically active and hectic day, we are being joined by Tuhin Sinha, national spokesperson of the BJP, Dr. Harshvardhan Tripathi, senior journalist, Anurag Bhadoria, national spokesperson, Samajwadi Party, Karuna Sagar, spokesperson, RJD, political analyst, Tehseen Poonawala, strong supporter of the Congress, and senior journalist, Vinod Agnihotri. As always, I'm going to begin with the non-political voices. Harshvardhan ji, आपसे शुरुआत करूंगी। क्या ये fair है कि मतलब बिहार का भी ठीकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ देना और कहना कि भाई आपने सीट शेयरिंग नहीं की, आपने मेरी बेइज्जती की, आपने कंस्पायर किया, इसलिए मैंने महागठबंधन छोड़ दिया, इसलिए मैंने आईएनडीआई को टाटा कह दिया? पद्मजा जी, मुझे आवाज थोड़ी सी बहुत क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे जो समझ पाया मैं, देखिए, जो आज कुछ हो रहा है इसको दो तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि बिहार में जो कुछ हुआ है, ये बिना किसी संकोच के कहना चाहिए कि इससे बड़ी पलटी मार पॉलिटिक्स शायद भारत ने कभी देखी हो। ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक साथ सत्ता में आए थे। जब वो गए थे तो वो धोखेबाजी थी, लेकिन तब वो जो कह के गए थे, अब जो कर रहे हैं, अब वो धोखेबाजी है। लेकिन मजबूरी में किया हुआ ये गठबंधन, इसका राजनीतिक निहितार्थ अगर देखें तो दो बड़े राजनीतिक निहितार्थ हैं। पहला, नीतीश कुमार के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 2019 में 39 आउट ऑफ 40 उसी के आसपास का आंकड़ा लगभग दुरुस्त कर लिया है, नंबर एक। नंबर दो, उससे अधिक महत्वपूर्ण है, जो नीतीश कुमार इस पूरे गठजोड़ की धुरी थे, और मैं इस लिहाज से मानूंगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने शायद इसी वजह से इस प्रस्ताव को हां कही होगी, उस धुरी को खींच लिया। अब पूरे देश में ये विपक्षी गठजोड़ धुरी ही नहीं है उसकी, और जिसकी धुरी ना हो वो गाड़ी कहां जाएगी, वो पहिया कहां लटखड़ाएगा, उसको समझने की जरूरत है। तो मेरा यह मानना है कि नीतीश कुमार को मौका परस्त अवसरवादी नेता के तौर पर बिल्कुल याद किया जाएगा, लेकिन 2024 के लिहाज से विपक्षी गठजोड़ को यह बहुत बड़ी चोट है। चोट तो है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं फिर से पूछूंगी, क्या फेयर है कि सिर्फ कांग्रेस को कहना कि कांग्रेस के निकम्मेपन की वजह से हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल, इसका जवाब बिल्कुल मैं देना चाहूंगा, ये कतई ऐसा नहीं है। ये अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के निकम्मेपन की वजह से हुआ, तो आपको कहना चाहिए कि हम तो नरेंद्र मोदी से लड़ रहे थे। इसका मतलब नीतीश कुमार को पता है कि उनकी कोई राजनीतिक हैसियत अकेले नहीं है। जैसे वो मजबूरी है कि बिहार की राजनीति में जो ऑटो होती है 3 पहिए वाली, तो वो एक पहिया आगे का बन गए हैं। कमाल की बात यह कि बड़े वाले पहिए पीछे लगते हैं। तो नीतीश कुमार अगर ये कह रहे हैं कांग्रेस का निकम्मापन है, तो वो कौन सा कमाल कर गए? नीतीश कुमार की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी से तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। तो मुझे लगता है कि उनके पास प्लस बहुत था। परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी राजनीति वो नहीं करते थे, एक शानदार नेता थे, लेकिन जितना क्षरण नीतीश कुमार के व्यक्तित्व में किसी राजनेता के तौर पर हुआ, इतना देश में किसी राजनेता का क्षरण नहीं हुआ। बट बी दैट एज इट मे, द सिचुएशन राइट नाउ इज, विनोद जी, दैट सारे पार्टीज जो हैं मिल करके कांग्रेस के ऊपर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपने ये नहीं किया, आपने सीट शेयरिंग में कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई, फलां ढिमाका। द पॉइंट इज दैट इवन टुडे राहुल गांधी सीम्स टू बी
कंप्लीटली अनटच। वो आज कह रहे हैं कि भाई हम आकर के जलपाईगुड़ी में मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे, मतलब घर आपका वीरान पड़ा है और वहां आप बाहर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नहीं, मोहब्बत में तो ऐसे ही होता है, जब आप मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं तो घर की चिंता नहीं होती है, मोहब्बत की चिंता होती है। तो राहुल जी अगर मान लीजिए मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं तो अच्छी बात है और इस देश में मोहब्बत की जरूरत भी है। लेकिन मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये नीतीश जी संयोजक बने नहीं, मतलब बनना चाहते थे। उन्होंने सारा सिजरा जोड़ा। उनके प्रवक्ता बड़े गर्व से कहते थे कि हम सूत्रधार हैं। अच्छा, आप बीजेपी से लड़ने के लिए आप सूत्रधार थे और फिर बीजेपी के साथ चले गए। भाई ये कौन सी बात है कि हमारा पार्टनर ठीक से काम नहीं कर रहा तो जिससे हम लड़ने जा रहे हैं उसी के साथ चले जाएं। अगर आपके अंदर वाकई वो था तो आप कांग्रेस को मजबूर करते, सारे गठबंधन के सहयोगों को साथ में लेके आप अखिलेश जी से बात करते, ममता जी से बात करते, स्टालिन से बात करते, उद्धव ठाकरे से बात करते, शरद पवार से बात करते और अरविंद केजरीवाल से बात करते और कांग्रेस पर दबाव डालते कि आप अपना सुधारिए रवैया। आप खुदे चल दिए। तो इसका मतलब जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। वो सिर्फ उन्होंने अपना हित, अपना स्वार्थ देखा है। और वैसे भी नीतीश जी के पूरे राजनीतिक जीवन को देखिए, उन्होंने विचार की राजनीति कभी नहीं की है। वो समाजवादी धारा से निकले, लोकदल और समाजवादी धारा के नेता थे। लालू जी से उनका झगड़ा हुआ और उसके बाद उन्होंने जनता दल छोड़ा, समता पार्टी बनाई जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, 6 सीट पे सिमट गई 1995। उनको लगा कि अकेले नहीं कर सकते, वो बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी के अच्छे विश्वस्त सहयोगी बन गए। और ये आप मानेंगे कि इंडिया अब बहुत ही, मतलब एज दे से इट्स ऑन थिन आइस, इंडिया का मतलब मोर और लेस खत्म है? नहीं, खत्म तो मैं नहीं कहूंगा अभी, लेकिन हाँ इससे झटका लगा है। दो घटनाओं से झटका लगा है। एक तो ममता बनर्जी का जो ऐलान, आम आदमी पार्टी, हालांकि नहीं, आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब में किया है। वो तो आप आम आदमी वो लड़ेंगे या लगेंगे, पहले दिन से कह रहा हूँ। वो केरल मॉडल चलेगा पंजाब में, क्योंकि वहां अपोजिशन का स्पेस जो है वो देना नहीं चाहते एक दूसरे को। Okay, so it is still not time to read obituaries for INDI, and slightly unfair to hint Sinha seems to be the consensus. You basically got an opportunist person to join hands with you because you wanted to corner Congress and embarrass INDI. Well, good evening, Padmasha. Good evening, everybody. Well, it's very clearly end game Indy Alliance, because Indy Alliance was always an optical illusion. And today, I have said this many times in the last 3 months that closer to the elections, all of them will fall apart, which is exactly what is happening. Now, when it comes to Bihar, obviously, it was a difficult choice for us to make. But point number one, whenever an RJD government comes in power, Bihar is consumed with crime and corruption. I think that has been put to an end today. And number two, at the national level, the Indy Alliance, stands shattered, whether it is Bengal, whether it is Bihar, whether it is Maharashtra. In all parts of the country, the Indy Alliance will be shattered, because the only thing that was binding it together, the only glue, was the anti-Modism factor. Beyond that, there was nothing. And, that had its own limitations. So I think, when it comes to the BJP, at a given point of time, if we feel that a certain decision would serve the state interests of the state better or the interests of the country better, at this point of time, I think the decision, Bihar is a crucial state and we are going to maximize our seat share over there, which is what will, take the 2024 tally to another level. All right. Tehseen Poonawalla, you just heard what KC Tyagi said. He said that this whole thing of making Mr. Khadge the chairperson of INDI was deliberately done in order to humiliate Nitish Kumar. Uske baad there was no reason for them to continue. Nitish Kumar himself said कि मैं तो सारी मेहनत कर रहा था, पिछले मैं 18 महीने से काम कर रहा था, whatever 12 महीने से काम कर रहा था, कोई और काम कर ही नहीं रहा था. And when we are talking about allies, very interesting, I'm sure you would have read the Kumi Kapoor column also today in the Indian Express, where she apparently said that the reason why Aam Aadmi Party was very upset is because Rahul Gandhi joked with Arvind Kejriwal saying that Aam Aadmi Party and Congress should decide on seat adjustment speedily because he was leaving for Nyaya Yatra and Kejriwal would soon be in jail. Aam Aadmi Party apparently wasn't very happy with his sense of humor. Now, do you really blame allies for saying bye-bye? So, Padmaja, let's go one step at a time. From what I understand, and the experts like Harshvardhan Ji and Vinod Ji said, Nitish Ji, respected Nitish Ji, left the Congress and the India Alliance to fight to join BJP
because the Congress wasn't helping him to fight BJP. So he went join BJP because Congress wasn't helping him to fight BJP. You know, there are two lines in अर्ज किया है, अजब तेरी सियासत गजब तेरा निजाम, अजब तेरी सियासत गजब तेरा निजाम, यजीद से भी दोस्ती हुसैन को भी सलाम. This fits perfectly to Nitish ji. The problem is for both sides, supporters on both sides, people like Tuhin, who until yesterday said that there was Jungle Raj in Bihar. They were criticizing Nitish ji even for the Bharat Ratna, saying what is his contribution. Today they have to praise him. So today BJP spokespersons are saying no, there was Jungle Raj because of Tejasvi, but Nitish was fine. And on the other side, everybody Nitish Kumar may be opportunist. You can mock him, but the fact is that your alliance is over. Who's going to answer for that? It's not over. So it's not over. I'll tell you why it's not over. Because in any case, yes, perceptually it hits the alliance. Really doesn't matter what happens in Bengal because there the TMC is the bigger party. Punjab, anyways, there should be no alliance. But perceptually it does hit the alliance. The fact of the matter is, if you just look at it very practically as 500 seats, in 300 seats, BJP last time won over 90% of the seats. So unless the Congress, which is the principal party in those 300 seats, that is North India and West India, did not win a significant chunk of that, the 200 seats, which is East India and South India, really didn't count for much. So technically, no, the alliance is not over. But yes, the BJP is way in a pole position. And my advice to the Congress, because Padmaja, I'm a Congress supporter, right? I come here and I vote the Congress, is how long is the Congress going to be dependent on allies? I'm being very practical here. Why is the Congress over in Bihar? It's over because of actually Laluji. This is practical. My city of Pune, my western Maharashtra, Vinod ji will tell you, NCP is your enemy. NCP is finished off Congress, not the BJP. BJP is no match. And look, I'll tell you what the Congress does not realize. Padmaja, think about this very practically. 15 years ago, Harshvardhan ji, Vinod ji and you, would you have expected the BJP, just Padmaja, 10 seconds and I'll finish, to form the government 15 years ago in Assam and Haryana? 15 years ago, BJP was the number 4 party in Maharashtra. Today in 3 states, these 3 states it's in government. Okay. Number 2, number 2, it's in a pole position in West Bengal after TMC. Why did you expect this 8 years ago? And if you think the BJP won't gain in Kerala and Tamil Nadu, we are living in fool's paradise. Just as the BJP strengthened itself, the Congress is duty bound to strengthen itself. The Congress being dependent on allies is hurting the Congress. Okay, let's take your initial point to Tuhin Sinha. The damage is largely only of perception, says Tehseen Poonawala. Actually, really nothing will change. It's too soon to be reading dirges to Congress or to India. Well, if the opposition decides to be in denial mode even now, God save them. Fact is that what happened in Bengal and, the way Akhilesh Yadav unilaterally handed over 11 seats to them, that is only going to be replicated in every other state, be it Tamil Nadu, be it Maharashtra, where Uddhav Thackeray is demanding 23 seats out of 48 and Congress does not have an answer, or now even Jharkhand. The fact is, independently, if Congress party decides to fight these elections, they don't even get minimal support. They're struggling for support in North Bengal. They don't have cadres because in many of these states, they have been non-existent for the last 2 decades now. So, I think the best way is for them to first, get rid of Rahul Gandhi, because I think if they restrict themselves to the personal branding of Rahul Gandhi, even at this point of time, where the priority should have been to address the concerns of the alliance partners, to get a convener in place, I think the personal branding exercises would repeatedly ensure that the Congress party is doomed. And I can clearly see the regional parties growing at the expense of the Congress party. India Alliance was always an illusion. They may assume a different name, a different form, but obviously the opposition will survive in a few states, even though, not at the national level. Okay, words of advice for the Congress. Tehseen Poonawala, before you react to that, I want to get to Anurag Bhadoria. Anurag ji, अब आप आए हैं, तो एक बात कंफर्म कर दीजिए. इसी कॉलम में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी कही गई थी कि जब सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी came with a booth by booth vote analysis. But when the first meeting took place for seat sharing between SP and Congress, Akhilesh Yadav pointed out that Mahavir Prasad, who was being proposed by the Congress for a seat from Uttar Pradesh's Bansgaon, has been dead for 10 years. तो सीट शेयरिंग में कांग्रेस कह रही थी कि बांसगांव आप महावीर प्रसाद के लिए दीजिए, फिर अखिलेश जी भैया उनको तो गुजरे हुए 10 साल हो गए, और फिर अखिलेश जी ने कहा चलो मैं ट्वीट कर देता हूं 11 सीटें लीजिए, थैंक यू वेरी मच. क्या ये हुआ था?
मुझे तो लगता है अच्छी बात है देश के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अब प्रिंट मीडिया पे भरोसा ज्यादा है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं पद्मजा जी। आज आपको प्रिंट मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है कि अपनी बात को रखने के लिए, एक बात। दूसरी बात जो बिल्कुल सुन लीजिए अच्छी बात, मैं तो खुश हो रहा हूं इस बात पे। और जो बात हमारे जो साथी त्रिपाठी जी ने कही, सबने कही, देखिए कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में परंपरा डालने की अगर कोई कोशिश करे तो ये राजनीति करने वाले लोगों के लिए चिंता की बात है और देश के लोगों के लिए चिंता की बात है कि आप अगर ऐसी राजनीति, क्योंकि गठबंधन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं होता है। कोई भी पार्टी जब गठबंधन करती है तो राष्ट्र को हित में रखती है, समाज को हित में रखती है और कैसे राष्ट्र को बचाएंगे इसको लेके गठबंधन होता है। उसके लिए आदमी सेक्रीफाइस करने को भी तैयार रहता है कि हमें थोड़ा आगे पीछे भी जाना पड़ेगा तो चलेंगे क्योंकि राष्ट्र पहले है। लेकिन बिहार में जो घटना देखने को मिली कि हमेशा पलटना है, अपने स्वार्थ को देख के पलटना है, ये राजनीति माने भविष्य की राजनीति के लिए ये संदेश अच्छा नहीं दिया। हो सकता है कि उनकी अपनी राजनीति में उनको फायदा मिल जाए, लेकिन हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं उनको देख के, उनकी राजनीति को देख के हमें जनता को फेस करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर इस तरह का काम कर रहा है तो वो शक हम लोगों के ऊपर, माने जनता के मन में क्या जाएगा? सर आप पक्का है ना, आप तो नहीं पलट जाएंगे? पता चला कल आप भी कांग्रेस को 2 सुना रहे होंगे, कहेंगे कि 11 अगर उनने, क्योंकि अखिलेश यादव ने 11 सीटें तो उनके अनाउंस कर दी हैं। जयराम रमेश ने अखिलेश जी की ट्वीट के बाद बोला हमारी तो सीट शेयरिंग टॉक्स चल रही हैं। उनके हिसाब से टॉक्स चल रही हैं, आपके हिसाब से टॉक्स खत्म है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब गठबंधन होता है तो कुछ ऊपर नीचे चलता है। हमने अगर 11 सीटें बोली हैं तो हमने ये भी कहा है कि जीत की सीटें होंगी, जीत का दावा होगा और गठबंधन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, बात चलती रहेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिक्कत है कि आप देश हित में सब एक हो जाएंगे, बड़े मुद्दों को खत्म करना चाहते हैं। देखिए पहले तो मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं कि बहुत ज्यादती की है जिन्होंने कॉलम लिखा है। उस मीटिंग में मोहन प्रकाश थे, सलमान खुर्शीद थे, मुकुल वासनिक थे और अशोक गहलोत। देखिए ये सारे नेता जानते हैं महावीर प्रसाद 10 साल पहले मर चुके हैं। कहा यह गया था कि बांसगांव चूंकि महावीर प्रसाद जी का क्षेत्र है, वो वहां से सांसद होते थे, इसलिए ये सीट कांग्रेस को चाहिए। तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि उनको मरे हुए 10 साल हो गए हैं और अब वहां का सारा समीकरण बदल चुका है, वो स्थिति नहीं है। अब उसको इस तरह ट्विस्ट कर दिया गया कि जैसे वो कह रहे हैं महावीर प्रसाद के लिए सीट चाहिए। मतलब मुझे तो अब ये लोग जो है, सलमान खुर्शीद प्रदेश अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, मोहन प्रकाश उत्तर प्रदेश बनारस के बीएचयू के प्रेसिडेंट रहे, जानते हैं। तो ये इस तरह मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा ये जो मिस इन्फॉर्मेशन हम लोग करते हैं इससे बचना चाहिए। Okay, important clarification. Quickly, I think Anurag Bhadoria wants to also add to that. Then I'll go to Harshvardhan ji. Yes. देखने को मिला है, कोई जरूरी नहीं कि आज वो एनडीए के साथ गए हैं, कल रहेंगे। 1 महीने बाद पलट गए तो क्या करोगे आप? अब 1 महीने बाद उनको लगा कि नहीं हम जहां गए वो ठीक नहीं है, फिर वापस वो इंडिया गठबंधन में आने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि जनता तो देख रही है, जनता इस बात को समझेगी कि भाई ये कभी पलट सकते हैं। तो इसलिए जनता तो अब उन पे विश्वास नहीं करेगी। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा नुकसान होगा बिहार में, क्योंकि ये जो हम कयास लगा रहे हैं कि नहीं, कई बार जब पलट जाते हो तो जनता का विश्वास आप पे उठ जाता है। तो मुझे लगता है ऐसे नेता को जनता नकार देती है। Okay, हर्षवर्धन जी, इंडिया इज अ गठबंधन ऑफ प्रिंसिपल्स एज अपोज टू एनडीए। आज जो है नड्डा जी और नीतीश कुमार एक टेबल पर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। 1 महीना पहले एक दूसरे को पानी पी के कोस रहे थे। तो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं हमारा जो आइडियोलॉजी वाला गठबंधन है वो रहेगा, वो टिकेगा, झगड़े होते रहेंगे। एनडीए इज ऑन स्लिपरी स्लोप। देखिए पद्मजा जी, मैं तो बस यही कहूंगा कि अगर अभी भी यही सारे तर्क हैं तो इन लोगों को शुभकामनाएं। अगर आप सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं, और मैं यहां जो और बहुत सी बातें कही, लेकिन तहसीन भाई ने जो एक लाइन कही है वो तो सच है। देखिए राष्ट्रीय पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी के चरित्र का एक तरह से कहें कि प्रदर्शन नहीं करती, यानी आप जैसे हैं वैसे नहीं है। कांग्रेस का व्यवहार क्या किसी नेशनल पार्टी की तरह दिख रहा है क्या? और ये आश्चर्यजनक है। मैं कई बार समझ नहीं पाता हूं कि जब राहुल गांधी जी नेता नहीं है तो उनको क्यों सब मिलके नेता बनाने में लगे हुए, मतलब वो अनिच्छुक हैं। आप अगर ध्यान से देखिए तो अभी उनके आसपास की जो मंडली है उनमें से कोई न तो चुनाव लड़ सकता है न संगठन खड़ा कर सकता है। उनमें से कोई ऐसा नहीं जो बहुत अच्छा शानदार वक्ता हो। अब शायरी सुनाने को अगर आप वक्ता मान लें तो बात अलग है, कर लीजिए, उसको शामिल कर लीजिए। कोई ऐसा
नेता नहीं जिसको जमीन की समझ हो, वो सिर्फ राहुल गांधी के इर्द गिर्द रह के अपना हवा पानी माहौल बना रहे हैं। भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप राहुल गांधी को मजबूत करें। राहुल गांधी की वजह से अपनी मजबूती नहीं लेनी है। ये जमीन से उखड़े हुए लोग राहुल गांधी को बहुत जननायक बना रहे हैं और उसके चक्कर में कांग्रेस पार्टी जो रही सही है, जो ढंग का नेता जो काम करके जमीन से आता है, वो ये सब देखता है, कहता भैया इनके साथ तो बात ही नहीं करनी। और मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इस समय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसने प्लानिंग की है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक दिन पहले भी कहा था, तब भी विनोद जी संयोगवश उस वक्त हमारी चर्चा में थे, फिर से कह रहा हूं, जरूरत थी इसकी कि नीतीश कुमार होते, शरद पवार होते, उद्धव ठाकरे होते, अखिलेश यादव होते, तेजस्वी यादव होते, ममता बनर्जी होते और शुरू होती यात्रा कि हम लड़ने जा रहे हैं मोदी से। ये राहुल गांधी को हीरो बनाने का कब तक भूत चढ़ा रहेगा? जब तक चढ़ा रहेगा कांग्रेस की गति होती रहेगी। Okay, let's take this across to the RJD. Karuna Sagar, in a sense, do you think that Bharat Jodo Nyaya Yatra or the Congress is the problem? Because let's just look at the indications. जिस राज्य में जा रही है, मतलब लोग ऐसे आप मजाक में कह रहे हैं कि जिस राज्य से जोड़ो यात्रा गुजर रही है, वहां से इंडिया तोड़ो हो जाता है। बंगाल में हुआ, अब बिहार में हुआ, अब वो यूपी जा रहे हैं। Well, thank you, Panja. And I think this question should be addressed to a Congress spokesperson to clarify or But sir, you were at the receiving end. सरकार तो आपकी गिर गई, यात्रा उनकी थी, सरकार आपकी गिर गई। No, that's what I mean, coming to that. As far as we are concerned, we formed this alliance to fight the communal forces and work on two fronts. That is on development and social justice. And for past 1.5 years, less than 1.5 years that we have been in power, there has been significant developmental work done in terms of quality of education, in terms of quality of health, employment generation. You have seen that in Gandhi Maidan, lakhs of youth were handed over job cards and appointment letters. In fact, the Prime Minister was forced to replicate it on a much smaller scale in Delhi. And for the first time, we had an investor summit and more than 50,000 crore worth of MOUs were That is signed. wonderful. But sir, again, I want to ask you about a very specific allegation that was made by the JDU today, that the Congress conspired to humiliate Nitish Kumar, made Kharge ji the convener, the chairperson of India, and that's the reason why aapki sarkar gir gayi. That's why they walked out. You see, as the RJD spokesperson, I can only talk about RJD's position to in this. Interesting. RJD refusing to say anything about the Congress's role, Nitish Kumar refusing to say anything about the RJD's track record. Tehseen Poonawala. No, I really don't want to say anything about the RJD or any of the regional parties. Look, I'm not a fan of this. I'm a Congress vote. I'm being very honest with you. Why am I dependent on Tejasvi is a great friend of mine. Why am I dependent on Tejasvi helping me win? I have to win. In my city of Pune, in Western Maharashtra. But why don't your leaders understand that? If you can understand if Nitish Kumar can understand it, why can't Rahul Gandhi understand it? Or answer the simple question that Harshvardhan ji said, whose idea is this Nyaya Yatra at this time? So Padmaja, you remember in 2023, I don't remember the month, but you and I had this conversation outside your office where we said that this is going to happen with the Congress after Maharashtra in Bihar. You and I had this conversation. I don't know if you remember this, but we had this exact conversation. It has to be a really terrible day for Rahul Gandhi and the Congress when even Tehseen is saying that this had to happen. At least Anurag Bhadoria is defending. Tehseen, you are not even defending today. It's going to happen. Look, it was going to happen. We knew it's going to happen. The fact is, what we should have done is that, and you also know, Anurag is right, Nitish will come back here. He'll win MPs there. He'll get MPs there. He'll come back here. The fact is, you have to take a call. How long can any organization depend on other people? That is a call we have to take. Is our aim to defeat BJP and end Modi ji's government, or is our aim for us to come to power? That should be our goal line. Defeating Modi ji should not be our aim. Our aim is, can I come to power? हम इस पर खुश हो रहे हैं उनके घर में बिरयानी नहीं बनी, भाई हमारे दाल चावल हमको नहीं मिल रहा है.
उस पर आप सोचिए, उस पर विचार कीजिए। कैरी आउट अ न्याय फॉर कांग्रेस यात्रा, अ न्याय फॉर कांग्रेस सपोर्टर्स यात्रा, पैरेलल यात्रा शुरू करो पुणे से दिल्ली तक। अनुराग भदौरिया वांट्स टू कम इन। यस, अनुराग भदौरिया, देन तुहिन सिन्हा। पद्मजा जी मैं पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके एनडीए गठबंधन के अभी कुछ दिन पहले तक तो नीतीश कुमार जी को तो गालियां दे रहे थे, जो विधानसभा में उन्होंने बोला था उसके लिए स्मृति ईरानी जी क्या क्या कह रही थी, तो क्या दोबारा से सारे शब्द वापस लेंगे? अभी तो जंगल राज बता रहे थे, नीतीश कुमार को कह रहे थे कि हमेशा के लिए, अमित शाह जी कह रहे थे अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। कोई कह रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, वुमेन का जब उन्होंने बोला था उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला गया। उधर नीतीश जी कह रहे थे नहीं अब हम मर जाएंगे तो बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, क्या वो राष्ट्र के धर्म को निभा रही है? क्या वो राष्ट्रीयता निभा रही है? क्या वो राष्ट्र नीति निभा रही है? ये जोड़ तोड़ की राजनीति अगर कोई नेशनल पार्टी करती है और जिस का चरित्र भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, मुझे नहीं लगता ये राष्ट्र के हित में है। एक बार किसी को गाली देती है, उसके बाद उसको गले लगाती है, किसी को बोलती है चोर है, उसके बाद उसको मंत्री बनाती है, किसी को बोलती है करप्ट है, उसके बाद उसको अपने दल में ले लेती है, उसको बड़े बड़े पद दे देती है। एक बार किसी को कहते हैं कि महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है, फिर उसको बुला के फिर अपने चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। तो क्या बीजेपी का कोई कैरेक्टर बचा है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। और ये बताइए, अगर बीजेपी का इतना खराब कैरेक्टर, आप ये सोचिए, एक तरफ है एक गठबंधन जिसमें आप हैं, यू आर इन एन अलायंस वेयर अपेरेंटली एवरीवन इज योर फ्रेंड। ऑन दी अदर साइड इज द बीजेपी जो आपको गाली दे रही है, आपको खरी खोटी सुना रही है, फिर भी यू लीव योर अलायंस एंड जॉइन द एनडीए। There has to be some problem in your house, right? That you are willing to go and live with the neighbor who is abusing you day and night. अनुराग भदौरिया, तो प्रॉब्लम तो अपने घर में है ना, कि आप अपना घर छोड़ के उसके घर जा रहे हो जो आपको रोज खरी खोटी सुना रहा है। नहीं, घर में नहीं है। नीतीश जी बोल रहे थे हम कभी नहीं जाएंगे, तो प्रॉब्लम उनमें है ना। और बीजेपी कह रही थी मैं कभी नहीं लूंगा और फिर ले रही है। तो प्रॉब्लम किसमें? सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी कितना माने गिर सकती है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा। ओके, रिस्पॉन्ड टू हिन सिन्हा। चाहिए हर सत्ता के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी को भी सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये बीएसपी को न जाने कितनी गालियां दे चुकी है समाजवादी पार्टी, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ती है तो बीएसपी से एक न एक बार ये जरूर एक्सप्लोर करती है एक टाई अप। जहां तक हमारा सवाल है, देखिए नीतीश जी हमें छोड़कर गए थे, हम नीतीश जी को छोड़कर नहीं गए थे। हम वास्तविकता में जीते हैं, हम लोगों को भ्रमित नहीं करते हैं। यदि हमें लगता है कि इस वक्त देश हित में, समाज हित में हम जीतने के लिए राजनीति में है, इसमें ये कहने में हमें जरा सा भी खेद नहीं होता। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो हार को ही अपना आदत बना चुकी है और हार के जरिए ही मतलब वो राजनीति में बार बार हार से भी उसको विचलित नहीं होती। हम जीतने के लिए हैं राजनीति में। और यदि 2024 में बिहार में 40 सीट पाकर हमारी टैली एक अलग लेवल पे जाती है तो हम इसको एक प्रैक्टिकल डिसीजन मानते हैं। हम पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी में यकीन नहीं रखते हैं। सबको पता है कि जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो इस देश का जो है वो बदल नहीं सकता। एक जो पैराडाइम मोदी जी ने सेट किया है, सारी सरकारें जो बीजेपी के हैं या जो बीजेपी के अलायंस में है वो उस डेवलपमेंट मॉडल में ही काम करेगी और वो करप्शन और परिवारवाद से मुक्त रहेगी। ओके, विनोद जी देखिए, तुहिन जी ने बहुत अच्छी बात कही है और सबसे बड़ी बात उनकी साफ गोई है, वो कह रहे हैं हम जीतने के लिए अलायंस करते हैं। देखिए, सारे गठबंधन जो है प्रकट तौर पर तो राष्ट्र हित में कहा जाता है, होते वो निजी हित में और दल हित में है। तो ये तो कहना अलग है, बाकी चीजें अलग है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये सही है कि बीजेपी ने नीतीश जी को नहीं छोड़ा था। नीतीश जी जब भी गए बीजेपी को छोड़ के गए, चाहे 2013 में गए हो, चाहे 2015 में जीतने के बाद फिर वापस वो बीजेपी में गए, फिर लौट के आए। तो वो नीतीश जी की अपनी एक राजनीति जो हर्षवर्धन जी उसकी व्याख्या कर चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से। मैं खाली इस बात को कहूंगा कि ये जो इस तरह की राजनीति है जिसको आप अवसरवादी कहें, ये पहली बार नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, उनकी सरकार बनाई मायावती जी के साथ। कर्नाटक में जेडीएस के साथ कभी कांग्रेस ने मिलकर बनाई, कभी बीजेपी ने मिलकर बनाई। अरे सर, उद्धव ठाकरे के साथ बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठी हुई है उद्धव ठाकरे के साथ डीएमके बैठी हुई है और तमिलनाडु में भी कभी डीएमके इधर, कभी एआईडीएमके इधर, कभी डीएमके इधर, कभी एआईडीएमके इधर। नहीं, एंड अगर जो आज आरजेडी बोल रही है कि भाई हमें पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जेडीयू लेकर के चले गए, जब आपने एआईएमआईएम के 5 में से 4 एमएलए खींच लिए थे तब तो किसी ने नहीं बोला था। पहले आपने एमआईएम को वोट कटुआ बोला, फिर आपने उनके 4 एमएलए
ये तो होता ही है। कांग्रेस ने बीएसपी के ले लिए राजस्थान में, मतलब जो पावर में जहां होता है उसका अपर हैंड होता है, और वह इस तरह से पोचिंग एमएलएस की, एमपीज की होती है, और कोई पहली बार नई बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कह, राहुल गांधी को बहुत ज्यादा हम लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाई राहुल गांधी का न्याय यात्रा पर बेहतर होता कि अगर न्याय यात्रा सारे जैसे इंडिया अलायंस के घटक दलों को विश्वास में लेके की जाती और राहुल गांधी करते, और ये एक अंडरस्टैंडिंग पहले से हो जाती कि अपने अपने राज्य में आप इसमें शामिल होंगे, तो बहुत बेहतर होता। ये तो निश्चित रूप से वो अतिरेक में उनके सलाहकारों ने कि हीरो बनाने के लिए कर दी। लेकिन अगर मान लीजिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा से जो भी थोड़ा बहुत चवन्नी अठन्नी का लाभ होना है तो सारे गठबंधन को होगा, जो ज्यादा सीट लड़ेगा उसको होगा। इसमें उसे दूरी बनाने का क्या मतलब है? ये तो बहानेबाजी है। क्योंकि उसका कारण बताऊं, ये बहानेबाजी है कि आपको अलग होना है तो आप राहुल गांधी पे ठीकरा फोड़ दीजिए। आप भाई आपके अपने इश्यूज है। और एक बात और कहूंगा, एक तरफ तो कहा गया कि राम मंदिर से ऐसा माहौल बन गया कि 400 पार, तो अगर माहौल बन गया तो नीतीश जी की क्या जरूरत थी? नहीं, मतलब बिहार में माहौल नहीं बना। बट राम मंदिर का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पैरेलल दिया है व्हेन केसी त्यागी सेड टुडे कि वन ऑफ द रीजंस दैट वी हैव लेफ्ट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस स्टैंड ऑन द राम मंदिर। तो खुद चले जाते ना। हाँ, let's listen into that because हाँ, because केसी त्यागी says राम मंदिर पे जो बोला हमें बहुत ठेस पहुंची। Let's just quickly listen. राम मंदिर का मामला था, हम लोगों का मानना था कि अदालत का जो फैसला होगा वो स्वीकार होगा। आज जब वहां पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, सभी भारतीय उसको पॉजिटिवली रेस्पेक्ट कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी ऐसे बयान दिए जो गठबंधन के लिए भी हार्मफुल नहीं थे, बल्कि जो सहिष्णुता देश की है उसके लिए भी अनकंफर्टेबल थे। करुणा सागर, राम मंदिर ऑल्सो, कांग्रेस राम मंदिर। मैं जवाब दे दूं? Again, you are asking me a question that should be addressed to a Congress spokesperson. But they are your alliance partners. Panja, I'm sure you share the same views. What I tell you is that what Mr. Tuhin Sinha said and what Poonawalla said, this battle is an ideological battle. This battle is idea of India, and we are committed to that. RJD is a committed force when it comes to social justice, and by doing caste survey in the state and increasing the ambit of reservation, we have proved it. So we have worked on the development front, we have worked on the social justice front, and as part of the India Alliance, our agenda is to promote both development with social justice. Okay, great. But who will be the convener now? Do you think if Nitish ji didn't become, perhaps Lalu ji can become? No, I think there was no discussion on the convener. There has been nothing. And sitting in this studio, I can't speculate who is going to be the convener. Okay. If and when. Okay, very quickly, Tehseen Poonawalla, Anurag Bhadoria, and I'll give final word to Harshvardhan Tripathi. Yes. First, Tehseen Poonawalla. Keshi Tyagi ji saying that Ram Mandir Pran Pratishtha, he had got an invite. Why didn't he go? Why didn't Nitish ji go? Because Congress that time he was trying to went. save democracy with the RJD and Congress. Haan. So please, like I said, he wanted to save democracy by removing BJP, and now he's saving democracy by joining BJP. Okay, But Anurag please, Bhadoria. who takes them seriously? मुझे लगता है कि आपको अगर आपको एनडीए गठबंधन को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन आप ये बोल के कि मैं उन्होंने ऐसा बोला तो आप क्यों नहीं गए? नीतीश जी को किसी ने रोका था या त्यागी जी को किसी ने पकड़ लिया था दिल्ली में कि आप नहीं जा सकते? अरे प्रभु राम का मंदिर बनाया, किसी ने किसी को नहीं रोका था, सब दर्शन करने जाएंगे, चाहे आज जाइए चाहे कल जाइए। आपको तो रोका था किसी नहीं था, आपको जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी और जो भारतीय जनता पार्टी है, जो राजनीति का जो कहते हैं ना, जो स्तंभ होता है राजनीति की, जो नीति होती है, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए एकदम ठीक नहीं है कि आप पल पल में जनता चुनेगी सरकार और आप बदल देंगे। माने आप जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस बार जनता इनके साथ खेला करेगी 2024 में। जो जनता के साथ खेल करता है, इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल करेगी 2024। चलिए, जनता तो खेला करेगी, बट अभी इंडिया के अंदर क्या खेला हो रहा है? द एक्सक्यूजेस मे बी मेनी, हर्षवर्धन जी, बट माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज देयर एनी रिकवरिंग of INDIA from these consecutive jolts? Because it's happened in Punjab, Kerala, CPM has made it very clear, Mamata Banerjee has done it, Nitish Kumar is gone. What is INDIA now? Harshvardhan ji.
देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है कि सबसे गंभीर सवाल यही है, और मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि यूपीए था, यूपीए है और यूपीए रहेगा। जो INDIA करने की कोशिश हुई थी वो तो ध्वस्त हो गई, और अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, और मैं मतलब ये गंभीरता से कह रहा हूं कि कुछ नहीं तो तहसीन पूनावाला को सुनना चाहिए था। वो जो समझदारी की बात कर रहे हैं, और ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को अपनी मजबूती पर ध्यान देना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए। अगर सारे लोग अपनी मजबूती पर ध्यान देते तो आज वो राज्यों में कम से कम बात कर सकते थे कि हम इतनी सीटों पर तो स्ट्रांग है। कमाल की बात ये कि आप किसी भी सीट पर स्ट्रांग नहीं, सब खड़े हो जाते हैं कि अच्छा हमको इतनी दे दो, हमको इतनी दे दो। असली मुश्किल वहां है, और मुझे लगता है कि यही इस गठजोड़ का सबसे बड़ा संकट है, जो अब गठजोड़ बचा भी नहीं। Who knows, maybe that is the bigger game plan for 2029, that even if fellow travelers and allies leave them halfway in the battle for 2024, the Congress is willing to take those hits, if only to consolidate for 2029. Let's hope that there is a bigger master plan at play. In the meantime, thanks very much, gentlemen, for joining me. Each week brings with it a new surprise, much more for us to analyze. Thanks for watching. The News Hour Special Edition.